Hello guys, hello to all of you. I welcome you all from my heart to Vedantu Commerce for a better future. This is your master teacher CM Bindusha Dua और हम साथ पढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य बैच में planning. Yes guys, so today we'll be doing 3 mark questions and 4 mark questions that can be made from this chapter and are frequently asked in your examination for your board. तो आइए बेटे शुरू करते हैं। कैसे हैं सब बच्चे, पहले तो मुझे ये बताएंगे। एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, अच्छे ही रहने चाहिए। तो ईद मुबारक मेरे सब बच्चों को, अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। चलिए बेटा जी, ऑन दिस ब्यूटीफुल फेस्टिवल लेट्स कंटिन्यू टू लर्न। व्हाट्स द थॉट फॉर टुडे? इट ऑलवेज सीम्स अन इम्पॉसिबल until it's done। जब तक हो नहीं जाता तभी तक बेटे लगता है कि इम्पॉसिबल है। वंस इट इज डन फिर तो हो ही गया था, है ना। सो विद दिस हाई एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। दिस इज योर स्केड्यूल फॉर टुडे। on 14th of May, here ही आपकी सारी classes. You had a session with Aditya Arya sir at 1 p.m. wherein you talked about confused about pure versus applied mathematics. Then you had a session with Neha Raghuvanshi ma'am for your economics, where you discussed circle of lowest income. Now you are having a session with me. This is for class 12. So economics was also for class 12. Business is also for class 12. We are doing planning. Basically, we are revising the short answer type questions, that is 3 and 4 mark questions. And then at 7 p.m. you guys are having a session with Sheetal Chaudhary ma'am, wherein the session is for class 11th accounts, and this is the topic. See the topic, see the timings, don't miss the classes guys. Let's rock on together. So फटाफट से सब बच्चे बिना रुकावट के, बिना किसी हिचक के अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। फटाफट से hit that like button and mark your attendance, and once your attendance is done मैम को बता देंगे चैट बॉक्स में। डन 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 डन, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। So guys, if you are new to the channel, once again a very warm welcome. Hit that bell icon so that you do not miss any of the notifications. चलिए बेटे, ऑल्सो गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं किया है। द लिंक फॉर द टेलीग्राम ग्रुप इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप सिंपली उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पर जाओ एंड राइट वेदांतु कॉमर्स। जैसे आप वेदांतु कॉमर्स लिखोगे आपको एक चैनल दिखेगा, आपको जाकर उसमें ज्वाइन बटन दबाने का और ज्वाइन करने का। यहाँ मिलते हैं आपको नोट्स, द नोट्स दैट वी स्टडी, द कंटेंट दैट वी स्टडी थ्रू आउट द डे ऑन योर यूट्यूब वेदांतु यूट्यूब चैनल। सारे कंटेंट यहीं मिलते हैं। द हैंड रिटन नोट्स दैट आई मेक फॉर यू आर ऑल्सो शेयर्ड हेयर। क्विज़ेज होती हैं, ऑल द अपडेट्स अबाउट योर यूट्यूब आर ऑल्सो शेयर्ड हेयर। तो बेटा जी अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करने का विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो क्लास 12, हाउ इज द जोश? एकदम सुपर हाई जोश है। हम चैप्टर नंबर 4 अभी अभी करके हटे हैं। वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि क्लास चैप्टर नंबर 4 जो लगभग हमारा 7 से 8 नंबर का पेपर एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम योर चैप्टर प्लानिंग, उसको हम पुख्ता करें। वी आर मेकिंग द फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फॉर दिस चैप्टर। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रिवाइज एंड इट्स द टाइम टू स्टार्ट short answer type question. The first question coming on your screen. चलिए क्वेश्चन क्या है? 2010 में, in 2010 all India examination, this question has come in your board exams. State how planning leads to rigidity. So we know that it is one of the limitations. हमें पता है कि ये लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को हमारे को एक्सप्लेन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। Leads to rigidity, why? Because once the plan is done we cannot change. There is no creativity or innovation that is welcomed after the plan is made. Maybe while making the plan, while you are in the process of planning, while you are developing the premises, there are certain strategies, there are certain innovations that you are doing, but once the plan has started you cannot change, and then maybe you can give an example and explain it in a better way. आइए पढ़ते हैं। The existence of plan puts managerial activities in a rigid framework. Of course, चीजें एकदम rigid हो जाती हैं, stringent हो जाती हैं, जो change नहीं हो सकती। Programs are carried out according to the plans. Program हमने पढ़ा, it is one of the type of the plans, है ना।
Managers become more concerned with observing the rules and procedures as laid down in the plan rather than achieving the goal. कहीं ना कहीं वो जैसे सोच रखा है ना हमने अपने दिमाग को rigid बना लिया, ऐसे ही करने का है. तो it is one of the limitations that you have to explain. 3 number question is simple answer, and what I suggest is always if you think you can explain things in a better way with the help of example, दो example. ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाओ ताकि देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आपके किसी भी तरीके से नंबर कट जाए. ठीक बेटा जी, चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन. Now this question has been asked in your 2008 All India exam. It is one of the HOTS मतलब high order thinking skill question है. तो जैसे अभी CBSE सैम्पल पेपर रिलीज करती है, पहले HOTS भी रिलीज करती थी, वहाँ पर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है. लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन. In spite of many advantages, state how planning can be detrimental. मतलब डिसएडवांटेजेस तो हैं, हमने बोला कि बहुत सारे एडवांटेजेस हैं प्लानिंग के, बट कहीं ना कहीं डेट्रीमेंटल एज इन कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी है. यहाँ आप हम आपको समझाइए. चलिए ये समझते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? चेंज होता रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. जैसे अभी कोरोना चल रहा है, फिर कोरोना चला जाएगा, या पिछले साल कोरोना था फिर गायब हो गया, फिर से आ गया, सेकेंड वेव चल रही है. यस बेटे, तो चेंज होती रहती है सिचुएशन. दैट इज नथिंग इज कांस्टेंट. सम टाइम प्लानिंग फेल्स. क्यों है डेट्रीमेंटल? क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती है. प्लानिंग फेल्स टू फोरसी द चेंजेस एंड दीज आर ऑब्स्टैकल्स इन इफेक्टिव प्लानिंग. हेंस अब देखो बेटे, अभी क्वेश्चन आया हुआ है और डेट्रीमेंटल में स्पेसिफिकली इन्होंने डायनामिक एनवायरनमेंट के बारे में ही बात करी है. अब गाइस, अगर मैं आपकी जगह होती ना और ये क्वेश्चन आ जाता, ठीक है, और मैंने बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता, तो मे बी मैं सारी लिमिटेशंस लिखने लगती. डिपेंडिंग ऑन द 3 मार्क क्वेश्चन, मैं उतने ही लिमिटेशन लिखने लगती. तो अगर आप वैसे भी सोच रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने क्वेश्चन देख लिया और हमारा सजेस्टेड आंसर है एज पर CBSE, तो हम डायनेमिक नेचर लिख सकते हैं. बट सिंस वी ऑल्सो नो कि जो अब 3 नंबर का क्वेश्चन होता है उसको हमें 50 से 75 वर्ड में, दैट इज 50 to 75 वर्ड्स में लिखना चाहिए. डू यू थिंक कि 50 to 75 वर्ड्स हो रहा है यहाँ पर? आई डोंट थिंक सो. So what I suggested, maybe you can write 1 or 2 more disadvantages of planning too. Maybe you can write like it does not work in dynamic environment, it is rigid, it is time, it involves a lot of time, it involves a lot of cost, it does not guarantee success. सारे नहीं लिखने हैं, मैं नहीं बोल रही आपको सारे लिखने हैं. ये शायद एक लिखा है, हम 2 या 3 लिख देंगे, ये एक 2 लाइन में और एक्सप्लेन कर देंगे बाकी सबको. ठीक है, सो दैट देयर इज नो स्कोप कि आपके नंबर किसी भी तरीके से कट पाए. Am I making sense to you? Can I get a confirmation? I want all of you to give some hearts in the chat box. Come on. मैम को दिल चाहिए. Very, very good. Let's go to the third question. Third question coming on your screen. Now this question has come in Delhi 2012 examination and it can be asked in 2 ways. मतलब 2 तरीके से पूछा जा सकता है. क्या बोल रहे हैं? स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. कोई सी भी 2 लिमिटेशन बतानी है, या फिर हाउ डज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड रिड्यूस क्रिएटिविटी. तो यहाँ पर तो 2 स्पेसिफिकली पूछा हुआ है, इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, वरना आपसे किसी और तरीके से पूछ लिया 2 लिमिटेशन. तो अगर आप 2 लिमिटेशन में कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम रिजिडिटी एंड रिड्यूस क्रिएटिविटी, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट एज वेल. बट सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि रिजिडिटी और रिड्यूस क्रिएटिविटी बताओ. रिजिडिटी तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन यही पढ़ा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी एज वेल. So we say planning leads to rigidity in an organization. A well-defined plan is drawn up for specific goals. तो हमने एक सोच रखा है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, हमारे को अच्छे नंबर लाने, वो हमारे को लाने हैं, वो हमारा गोल है विद इन अ स्पेसिफाइड फ्रेमवर्क. ऐसे भी आपने सोच रखा है. वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ मे और नेक्स्ट मार्च में मोस्ट प्रोबेबली इफ दिस कोरोना गोज आपके पेपर हो जाएंगे बोर्ड के, है ना. These plans then decide the future course of action. अब जो आपने प्लान बना लिया, ये जो ब्रिजिंग ऑफ द गैप किया, अब इसी पे आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन चलाने वाले हो. एंड मैनेजर्स नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज इट. एक बार ही चालू हो गया तो चेंज करना मुश्किल है. जैसे हमने केस स्टडी करी थी ना इन वन ऑफ आवर सेशंस, मिंटी को इससे पहले वाला जो सेशन था,
वहाँ पे हमने कहा था ना केस स्टडी कि एक बंदा था जो कंप्यूटर, उसको दो कंप्यूटर बनाने थे एक दिन में, बट ही वाज अ क्रिएटिव पर्सन, वो 2 की जगह 4 बना पा रहा था एक दिन में। जब उसने मैनेजर को बताया तो उसके मैनेजर ने उसको अप्रिशिएट करने की जगह ये बोला ऐसा है, ऐसा ही ये प्लान, आपको 2 ही बनाने हैं, बिकॉज दिस इज हाउ द एंटायर प्लान इज वर्किंग लाइक। तो बेटे देन मैनेजर्स भी एक फिक्स में हो जाते हैं कि वो अपने सिचुएशंस को चेंज नहीं कर पाते हैं। दैट इज व्हाई इट बिकम्स रिजिड। यू रिमेंबर? यस बेटे, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी। हाउ डज इट रिड्यूस क्रिएटिविटी? क्योंकि प्लान जो है टॉप लेवल पर ज्यादातर बनता है, जबकि हमने पढ़ा है प्लानिंग इज परवेसिव। हमने पढ़ा था ना प्लानिंग परवेसिव है, ये हर एक लेवल पर लगता है प्लानिंग, बोला था ना, टॉप पे भी है, मिडिल पे भी है, लो पे भी है, बट इन जनरल जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो जनरली टॉप पे ही बनता है। मेरे से भावेश ने पूछा भी था एक दिन कि मैम टॉप लेवल बनाना चाहिए मैनेजमेंट का प्लान, तो तीनों तो नहीं बनाना चाहिए बेटे, बट हमारे को पता है परवेसिवनेस इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन, बट यूजुअली देखो, आप यूजुअली और जनरली को मतलब एज अ रूल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। दिस इज इन जनरल वी आर टॉकिंग। मिडिल एंड लो लेवल आर एक्सेप्टेड टू फॉलो द प्लान्स। जो इन्होंने प्लान बना दिए इन दोनों को उसे फॉलो करना है। एंड यस, जब भी, जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था जब भावेश ने हमारे से पूछा था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड अस, मैंने बताया था कि प्लान तो देखो सबसे ऑब्जेक्टिव तो यही सेट करते हैं, बट अब अगर ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, वो काम कराएंगे ना, वो भी कोई प्लान बनाएंगे कि ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है आपको, ऐसे करना है, बट अल्टीमेटली द अल्टीमेट गोल इज डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। therefore much of the initiatives and creativity inherent to in them get lost। जो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो ऊपर वालों ने बताई दी ना, ऐसे ही करना है, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू। Yes, they do not take any initiative to make changes. Yes, changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट की वजह से, वो हम उसको कंसीडर कभी कभी नहीं कर पाते हैं, और ये आपको एक्सप्लेन करना है। दिस विल ऑल्सो बी अ 3 और अ 4 मार्क क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि हमारे को 3 मार्क क्वेश्चन है 50 to 75 वर्ड्स में आंसर करना होता है, और 4 मार्क क्वेश्चन यू हैव टू आंसर इन 150 वर्ड्स। Guys, why do I keep repeating it? Because it has to go deep inside your brain. Though this instruction will be there available on your CBSE का paper also, जब आपको पेपर मिलेगा ना, उसमें लिखा होगा ऊपर, but still you have to be very clear because when you are practicing, इसको मद्देनजर रखते हुए ही आपको प्रैक्टिस करना लिखते हुए। ठीक है जी, चले क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलो आ जाइए बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Now this question has come in 2014 in one of your compartment exams। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया? How does planning not work in a dynamic environment and does not guarantee success? Again ये भी दो limitations है। Again these are two limitations, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो देखिए कैसे लिखे हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट, अभी हमने बताया कि सिचुएशंस बदलती हैं, बट प्लान जो है वो हम एक तरीके से फिक्स कर देते हैं जब हम स्टार्टिंग में प्लान बनाते हैं, प्लान के प्रोसेस को यूज करते हुए। अब अगर चीज़ें बदल रही हैं और हमने अडेप्ट नहीं किया चेंज, तो कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे टू reach the goal that we want to reach, because we are not able to foresee what will happen tomorrow। yes, and then it does not guarantee success, क्योंकि हमने बहुत समय लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ जद्दोजहद करते हुए, प्रीमाइसेस बनाते हुए, इवैल्यूएट करते हुए चीज़ों को हमने फिर इम्प्लीमेंट किया, बट इट डज नॉट मीन कि सक्सेस हो ही जाएगी। अगर आपने प्लान बना लिया और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हो, और लिख लिख के पढ़ने वाले हो, कौन से क्वेश्चन भी, इकोनॉमिक्स भी के भी, मैथ्स के भी, हाँ आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करें, बट एंड में जो होगा क्या वो गारंटीड है? नो बेट, इट इज नॉट गारंटीड, बिकॉज थिंग्स चेंज अगेन। नेक्स्ट टाइम जो करोगे ऑफकोर्स बदल सकते हो, बट क्या अभी जो सिचुएशन है वो दोबारा आने वाली है? नहीं आने वाली है। तो आपको प्लानिंग पीरियड को अकॉर्डिंगली बनाना है, एंड दिस इज वन ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशन दैट इज देयर विद प्लानिंग। therefore it does not guarantee सक्सेस। प्लस कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि प्लान हमने बना तो लिया,
बट उतना प्रॉपरली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो क्या सक्सेस आएगी? ऑफ कोर्स नहीं आएगी। यस गाइस, एम आई क्लियर? कैन आई गेट सम फायर्स इन द चैट बॉक्स? ऑल ऑफ यू, मजा आ रहा है ना? भेजे में जा रहा है ना? ठीक है बेटे, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ दिस इज वन ऑफ द केस स्टडीज दैट इज कमिंग टू यू ऑन द स्क्रीन। ये केस स्टडी है बेटा जी, आइए देखते हैं। केस स्टडी आई हुई है। Now since it's a case study, what we do is we first read the question and then we read the case study, है ना? तो बेटे क्या बोल रहे हैं हम? The above paragraph defines one of the limitation। मैम अभी तक आपने सारे क्वेश्चन लिमिटेशन से ही पूछे, तो इसका मतलब क्या है? लिमिटेशन बहुत बार आया हुआ बेटा जी। आई वॉन्ट टू स्ट्रेस द फैक्ट कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आ सकते हैं, और हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो देयर शुड बी नो स्कोप कि आपके नंबर कटे। ठीक है, आपको बताना है। ऊपर पैराग्राफ में कुछ लिमिटेशन डिस्कस हो रखी है, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बता दिए कौन सा फंक्शन है। प्लानिंग फंक्शन है। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, नेम एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन ऑल इंडिया एज वेल एज दिल्ली का एग्जामिनेशन ऑफ 2011। ओके, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। Let's read the case study in practice to say. Rahul, a worker, is given a target of assembling 2 computers per day. Okay guys, this question we have already done when we were doing the case studies, if you remember. तो मतलब केस स्टडी में तो करा ही था, बट एक क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, तो आपको ऑलरेडी आंसर पता है, बट कोई बात नहीं, लेट्स रिपीट इट। इट इज नेवर नो बैड टू रिपीट और रिवाइज थिंग्स। 2 कंप्यूटर एक दिन में बनाने हैं। Due to his habit of doing things differently, an idea struck to his mind which would not only reduce the assembling time of computer but would also reduce the cost of production। भैया समय तो कम करने ही वाला है, जो उसको क्रिएटिविटी आई है, जो उसके दिमाग में भेजे में नया आइडिया आया है, उससे टाइम तो कम लगने ही वाला है, बट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बट जब अपने सुपीरियर के पास गया, राहुल वेंट टू हिज सुपरवाइजर। Instead of appreciating him, he ordered him to complete the work as per the method। जैसे हमने बना रखा है वैसे ही बनाने का है, because things cannot be changed at this point of time। सुपरवाइजर ने बताया भी क्या बेटे? इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कौन सी लिमिटेशन है। अब बेटे वहाँ पर हमने क्या किया था? हमने जब केस स्टडी वाला सेशन किया था डे बिफोर यस्टरडे, तो वहाँ पे हमने खाली केस स्टडी डिफाइन करी थी, मतलब सॉरी कहाँ पे हमने खाली लिमिटेशन बताया था कि ये लिमिटेशन है, तो वो शायद 1 नंबर का क्वेश्चन था। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। अगर 3 नंबर गया तो खाली हेडिंग लिखने से, खाली लिमिटेशन करने से काम नहीं चलेगा, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर तो लिखा हुआ भी है कि एक्सप्लेन करना है। तो लिखा हुआ है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग। कर दो इसको एक्सप्लेन कि भैया हमने अभी भी बोला कि प्लान ज़्यादातर टॉप लेवल पे बनते हैं, और मिडिल और लोअर लेवल वाले तो ज़्यादातर इम्प्लीमेंट ही कर रहे होते हैं। तो अगर उन्हें इम्प्लीमेंट ही कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्कोप होता है क्रिएटिविटी का वो लॉस्ट हो जाता है, और वो चेंजेस जो प्रिवेल हो रहे होते हैं उसको अडेप्ट ना करते हुए काम करते हैं। यस गाइस, क्लियर है? भेजे में घुस गया सब बच्चों के? पक्का से? प्रॉमिस? ठीक है, वेरी वेरी गुड। लेट्स गो टू द 6th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन अगेन हैज कम इन 2010। अब आपको बदले तो बताना है प्लानिंग क्या होता है। हमें प्लानिंग पता है, दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे, दिस इज वेयर यू वांट टू रीच, और इन दोनों के बीच के गैप को ब्रिज करने को ही हम प्लानिंग बोलते हैं। या फिर हम प्लानिंग को ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये भी लिख सकते हैं। वरना अगर आपकी बुक में कोई और डेफिनेशन दे रखी है और आपने वो याद कर लिया तो वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद 2 लिमिटेशन बतानी है। लिमिटेशन कुछ भी बता सकते हो। टाइम बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, रिजिडिटी होती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है ना, और सक्सेस गारंटी नहीं होती है। तो इनमें से कोई सी भी 2, क्वेश्चन में 2 बोला है, आप 2 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मैम मेरे को तो ज़्यादा आता है मैं ज़्यादा लिखूंगा, नो 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 नो, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे ज़्यादा लिखने के, और आपका पेपर छूट जाएगा। ठीक है, दिल टूट जाएगा, और आजू नहीं बेटे, पेपर छूट जाएगा बेटा। ओके, तो आप पहले प्लानिंग बताओगे। तो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। इन्होंने ऐसी डेफिनेशन लिखी है, हमने 2 डेफिनेशन अलग से याद कर रखी है, वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लिमिटेशन लिखनी है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी,
planning is it involves a lot of time, it involves a lot of cost, it does not guarantee success also. आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट आपको you have to make sure that you have to explain. और एक्सप्लेन तब करोगे बेटे जब आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, आपको अच्छे से समझ आता होगा, आपने लिख कर प्रैक्टिस कर रखी होगी. बिकॉज एग्जाम में सब कुछ आने के बावजूद कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता पूरा पेपर कंप्लीट करने का. एंड जनरली दिस इज द फर्स्ट पेपर. यस गाइज, आई डोंट वांट यू टू मेस अप विथ थिंग्स. अभी हमारे पास टाइम है, टाइम रहते हुए लिख लिख कर प्रैक्टिस करो. ठीक है, आगे बढ़े. Okay, seventh question coming on your screen. Now, this question has come in 2010 again. Planning reduce creativity. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. आप आराम से I'm sure that you can write this answer now without any problems. ठीक है, पक्का से ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. अगर कोई भी दिक्कत है तो you have to talk to me in the chat box or maybe in the comment box. I'll definitely get back to you. Okay, let's go to the eighth question. Now this question has come in Delhi 2009. Planning always leads to success. Question बोल रहा है always. Always मैम, always तो नहीं होता है, because आपने हमको बताया है planning does not guarantee success. तो अब क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन पूछा do you agree? So what you will say? No, we don't agree. And you have to give the reason in support of your answer. No, why? अगर आप अग्री करते होंगे तो आप इम्पोर्टेंस लिख दोगे, अगर नहीं अग्री करते होगे तो आप लिमिटेशन लिख दोगे. बट हमने सिंस एक पॉइंट डेफिनेटली पढ़ा हुआ है दैट इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, तो आप उसी को लेते हुए बोलोगे नो आई डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और आप उनको डिस्कस करके आंसर लिख दोगे. अब जैसे इन्होंने तो खाली हेडिंग लिख दी है, हम खाली हेडिंग नहीं लिखेंगे बेटे. द क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स. आप चाहे 2 लाइन में 2-3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करोगे, बट आपको एक्सप्लेन करना है. Again, making sure that 50 to 75 words are properly covered. Am I clear? पक्का से, श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक कर दिया जाए. वेरी वेरी गुड. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो टू द 9th question. Now, do you think planning can work in changing environment? Planning changing environment में काम करती है क्या? नहीं मैम, डायनेमिक एनवायरनमेंट में तो काम नहीं करती है. तो अब आपको यही एक्सप्लेन करने का है. नो, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक नेचर को आप एक्सप्लेन कर दोगे. ठीक है बेटे, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. मेकिंग दिस क्वेश्चन हाईली लाइक हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम आल्सो. तो हॉट केक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे. ओके, लेट्स गो टू द 10th question guys. Now 10th question says what kind of strategic decisions are taken by business organization? कैसे strategic decisions लेने पड़ते हैं business organization को कि वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहे या कहीं और चले जाए. बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करना है, सेम सिटी में करना है या ब्रांचेस खोलनी है, उन्हें मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर बनना है या कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करना है. तो ये कुछ पॉइंट्स है. डायरेक्टली क्वेश्चन आपके प्लानिंग चैप्टर से नहीं आया हुआ है. वंस यू विल बी एबल टू कंप्लीट द एंटायर बिजनेस स्टडीज, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं. ठीक है बेटे, क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछो. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये. चलिए लेट्स रीड द 11th क्वेश्चन. अब आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बीच में डिफरेंस बताना है. पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस है. तो सबसे पहले मेक श्योर दैट यू हैव टू राइट द आंसर इन अ टैबुलर फॉर्म सिंस द क्वेश्चन इज अ डिफरेंस. एंड यहाँ पर आप बेसिस लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, और यहाँ पर आप ऐसे करके डिफरेंशिएशन लिखेंगे. नेसेसिटी क्या है पॉलिसी की? ये डिसीजन बनाने में काम आती है ना. प्रोसीजर क्या होता है? ये स्पीड चीज़ों को फटाफट करने में हेल्प करता है प्रोसीजर. डेविएशन क्या है? एग्जीक्यूटिव्स में डेविएट इन डिसीजन ऑन स्पेसिफिक जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर विजडम. अपना दिमाग लगा सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन वेयर पॉलिसीज एंड आर फ्लेक्सिबल. पॉलिसीज जो है आपको जैसी जरूरत है आप अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं. ये हमने पढ़ा था. दे आर जनरल गाइडलाइंस, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, दे आर नॉट स्पेसिफिक गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस, दे आर जनरल गाइडलाइंस. स्पेसिफिक गाइडलाइंस रूल थे जब हमने पढ़ा था, याद है आपको? हमने टाइप ऑफ प्लान्स पढ़े थे.
पॉलिसी क्या है, जनरल गाइडलाइंस होती है, इसलिए जनरली आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड एज एंड व्हेन यू वांट टू यूज। स्टैंडिंग प्लान है, हमारे को पता है। प्रोसीजर क्या है बेटे, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन, ऐसे करने का है मतलब ऐसे ही करने का है, यहाँ पर मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। स्कोप क्या है बेटे, पॉलिसीज डिसाइड द लिमिट्स ऑफ एक्टिविटीज, whereas procedure it is a plan to execute decision based on policies। मतलब प्रोसीजर जो है पॉलिसीज पे ही बेस्ड होंगे, मतलब वो जनरल गाइडलाइंस पे ही बेस्ड होंगे। तो बेटे आप एक दो बार पढ़ोगे खाली पॉलिसीज या प्रोसीजर्स में ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान, आप आराम से डिफरेंसेस लिख पाओगे। दैट इज व्हाई हैविंग एन एक्सपोजर टू डिफरेंट क्वेश्चंस मेक्स थिंग्स इजी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं ना कहीं ये सब कुछ रजिस्टर करेगा और कैसे भी क्वेश्चन अगर फ्रेम होके आएगा आपके लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, ईजी हो जाएंगी चीज़ें मैनेज करना। और ये सारे डिफरेंसेस हम साथ पढ़ेंगे। पॉलिसीज जो है ज़्यादातर टॉप लेवल पे बनती है, प्रोसीजर जो है मीडियम और लो लेवल पर चलते हैं। तो अगेन आई एम रिएटरेटिंग द फैक्ट दैट वन ऑफ यू आस्क्ड कि पॉलिसी जो प्लान्स हैं वो टॉप पे ही बनते हैं, और मैंने वहाँ पे भी समझाया था तीनों जगह चलते हैं। बट अगेन व्हेन वी टॉक्ड अबाउट रिजिडिटी तो हमने बोला कि ज़्यादातर ऊपर बनते हैं। बट ये समझो कि प्रोसीजर इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लान, और वो मिडिल और टॉप बॉटम लेवल ही कर रहा है, मिडिल और लो लेवल भी कर रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस, आई डोंट वांट यू गाइस टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, पॉलिसीज जो है वो प्रोसीजर पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वेराज प्रोसीजर जो है पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होते हैं। वाई, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो जनरल गाइडलाइंस से ही बनते हैं। अब पॉलिसीज जो है सिस्टमाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड फैक्ट्स हैं, इसलिए साइंस है। वेराज प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस पे है, इसलिए आर्ट है। याद है फर्स्ट चैप्टर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, याद है? तो हमने वहाँ से रिलेट किया इसे, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 6 नंबर का आएगा, जबकि हमें 3 और 4 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर 3 या 4 नंबर का आता है तो आप 7 में से जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उसमें से 3 या 4 पॉइंट ही लिखेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। डिपेंडिंग अगेन यू हैव टू मेक श्योर, आपको प्रूडेंट होना पड़ेगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन आया और उतने नंबर के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखेंगे। रिलेशनशिप क्या है गाइज, देयर मे बी डिफरेंट पॉलिसीज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रोसीजर जो है जनरली सिमिलर रहता है सेम एक्टिविटीज का। क्लियर है बेटे? पक्का से थोड़ा न्यू क्वेश्चन था, हमने अलग तरीके से पढ़ा है और इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश भी करी है। ओके, लेट्स गो टू द 12th क्वेश्चन। अब रूल और मेथड के बीच में डिफरेंस, अगेन दीज आर टाइप ऑफ प्लान्स और इनके बीच में डिफरेंसेस आपको बताने हैं। जैसे हमने बोला कि पॉलिसी क्या थी, जनरल गाइडलाइन थी, बट ये क्या है, स्पेसिफिक गाइडलाइन है, रूल। और मेथड क्या है, द बेस्ट वे टू डू समथिंग। रूल क्या है, एक डिसिप्लिन है या ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जाता है, वेराज मेथड जो है एफिशिएंसी के लिए और सस्ता से सस्ता काम हो, है ना। सोर्सेज क्या है, यहाँ पर मैनेजरियल थिंकिंग का रिजल्ट है ये, वेराज मेथड जो है रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। रूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। मेथड में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों यूज होती है, ताकि आने वाले समय में चीज़ें जो है उसी तरीके से यूज हो, है ना। एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाए कि ऐसे करने से ऐसा होता है, और चीज़ें सिंप्लीफाई भी हो जाए, बिकॉज देयर माइट बी पीपल हु माइट कम हु माइट लीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पर भैया, अगर आपने रूल तोड़ा तो पेनल्टी तो लगेगी, है ना। अगर मेथड है तो कहीं ना कहीं टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा रहता है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। ओके गाइस, पक्का से क्लियर है ना? ठीक है। तो गाइस, डू यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉपीराइट? सुना है आप लोगों ने कॉपीराइट एक टर्मिनोलॉजी? अगर सुना है तो इसके बारे में हम बात करेंगे, अगर नहीं सुना है तो कुछ नया सुनने वाले हो आप, लीगैलिटी से रिलेटेड, एंड विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट सेशन। फॉर नाउ वी आर डन with your 3 and 4 mark questions that can be asked from this chapter. I hope आपको ग्रिप बना होगा इस चैप्टर पे, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है जी बेटा जी। चलिए, you can start your preparation for class 12 now. There are a lot of benefit that Pro subscription, Vedantu Pro subscription is offering you. जैसे कि you get 5,000 plus hours of live online classes. All subjects will be covered along with test and assignment, and everything will be taught to you in English. So if
you're coming from different states, then language will also not be a concern for you. There will be 10 plus teachers having 5 plus years of experience जो आपको पढ़ाएंगे in the best possible manner. और आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आएगी तो डुअल टीचर मोड में पढ़ रहे होंगे हम, मास्टर टीचर के साथ क्लास टीचर भी होगा जो आपके सारे डाउट्स क्लास में ही सॉल्व करेंगे, और आप घर में बैठे हुए किसी भी डिवाइस से, एनी डिवाइस से आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना. 1 और 12 मंथ प्लान अवेलेबल हैं जिनके प्राइजेस तो हैं ये, दीज आर द एक्चुअल प्राइजेस, बट ओरिजिनल प्राइजेस की जगह आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस ही देने हैं. दैट इज 2900 की जगह 2610 रुपीज़ फॉर 1 मंथ एंड 33,999 फॉर 12 मंथ की जगह 30,599 ओनली. बट गाइज this 10% discount is only available if you use my coupon code, that is DDPro. इसे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली कूपन कोड लग जाएगा. मेक श्योर दैट द कूपन कोड इज देयर, बिकॉज इफ द कूपन कोड इज नॉट देयर यू वॉन्ट बी एबल टू अवेल द डिस्काउंट. ठीक बेटे, चलिए, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेंगे. ओके, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक नहीं किया है. आई विल सी यू टुमारो गाइस. स्टे होम, stay safe, stay healthy. Thanks for watching, and once again a very very happy Eid to all of you. Have a beautiful beautiful day ahead. This is your master teacher Siamya Dashadua signing off for today. Bye bye guys, love you all, stay blessed, take care.